Hello, a very warm good afternoon to one and all present here. I, Dr. Bhavna Agrawal, on behalf of Rabindranath Tagore University, Bhopal, welcome you all to this webinar on intellectual property right. My heartily welcome to Honorable Vice Chancellor Sir Dr. Brahm Prakash Pilti, keynote speaker, Dr. N.K. Chaudhary, Senior Principal Scientist, Head of Intellectual Property Facilitation Center, Patent Information Center and Technology Management Center, MPCST Bhopal. It gives me great pleasure to extend a warm welcome to IKC Head Dr. Sangeeta Chaudhary, to all deans, HODs, convener and co-convener of program, all faculty members and my dear students. The objective of the webinar is to aware about the patent design copyrighted mark. With this, Dr. N.K. Chaudhary is presently working as Senior Principal Scientist and Head of Intellectual Property Facilitation Center, Patent Information Center and Technology Management Center, MPCST Bhopal. He earned his PhD degree in geology from Barkatullah University, Bhopal. His specialization is in remote sensing and GIS application in water resources, including natural resources, intellectual property rights, technology management, medicinal, and aromatic plants environmental issues. Dr. N.K. Chaudhary is having more than 30 years of working experience in the field of application, resources, inventory, planning, management, and execution of plans estate. He has successfully carried out various national and international projects and programs of Government, MP Government of India, DST, Department of Space, World Bank, and UNICEF. Since last 13 years, he is working for intellectual property right and technology management related work. He has executed various projects and programs under DST, DSIR, and GOI schemes. He is also having 10 years experience in S&T execution and programs in rural and tribal dominating areas. He has also been awarded and motivated for science-related programs and projects among peoples and organizations. Now, I would like to request Dr. N.K. Chaudhary sir to deliver his lecture. Hello. Chaudhary sir, over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good afternoon to all dear friends. Good afternoon. Especially, I would like to thank to Vice Chancellor of the University, Neetu ma'am, Chitra ma'am, and other dear friends to whom I was in touch since a long time with you and other faculty members of Tagore University. I hope that before that we have also conducted 2 more sessions for the academics and the students in last 2-3 years. This year we have the opportunity to conduct this webinar through distance manner, using the techniques and tools which can be connect us from the distance, which is in our language is called as remote sensing. So remotely we are in connected and communicating to each other. Definitely it is a very good initiations of the university, that apart from other sectors, the intellectual property, which is a very important issue of the property, we are thinking about it. We are doing it, doing to peoples to aware, and moreover, we will do also to protect
more intellectual properties in the future. So I hope that many university has started in Madhya Pradesh, and R&T University will also come forward with some number of intellectual property applications, so that definitely its brand value will increase continuously, as it is a very popular and good university, not only in Madhya Pradesh, but the ISECT group is well known in India. So once again, I thank to all, and I would like to initiate my talk with some examples and some sentences. I also like to use here English in place of English, so that the many of our participants can understand the subject in a better manner. Yes, We sir. can Yes, sir. free from fear to know that intellectual property is really a very complex subject. So in simple manner, if we can able to understand it, then definitely it will be more beneficial to us. And the other benefit is it will just like a both way session. You will understand and ask many questions and your queries, whichever you feel to ask. Otherwise, if I only tell and go, then many of the things will be unclear. तो नमस्कार आप सभी लोगों को। और सबसे पहले मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएशंस लिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारे जो वेबिनार्स हैं वो आयोजित हो रहे हैं, और लगभग मुझे 5 से 6 जो वेबिनार हैं पर मंथ वो करने पड़ रहे हैं, ना सिर्फ भोपाल में बल्कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और अदर सिटीज में भी। उसी कड़ी में ये वेबिनार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो हैं यहाँ कुछ जो टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, तभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमारा क्लैरिफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत ही कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज यानी हमारे परंपरागत ज्ञान। ट्रेडिशनल नॉलेज, इन्वेंशंस, इनोवेशंस, इंक्रीमेंटल इन्वेंशंस, इंक्रीमेंटल इनोवेशंस, देन revolutionary inventions, discoveries and so on। तो यहाँ सबसे पहले हम एक बात जो है जो ट्रेडिशनल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में देखेंगे कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार जब किसी के पास होता है तो एक निश्चित समय सीमा के बाद में वो जब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज बन जाता है। तो हमारा देश और एशिया के कुछ देश, साउथ अमेरिका, ये सब ना सिर्फ हमारे प्रैक्टिसेस में, कल्चर में, बल्कि वन संपदा में, रिसोर्सेस में बहुत रिच हैं। इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं और इसलिए यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। और इन विविधताओं के कारण ही जो है वो जो क्रिएटिविटी और जो नए नए आयाम हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, और इन्वेंशंस और जो इनोवेशंस है उनका भी वो तेजी से घटित होता है। पहले इन सब चीज़ों को लोग मानते थे कि ये चूंकि सोसाइटी की प्रॉपर्टी है इसलिए इसको हम क्यों प्रोटेक्ट करें, परंतु जो WTO का जो सिनेरियो है, ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनके बेसिस पर जो है उनको बिजनेस मॉडल में या बिजनेस टूल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हम देखते हैं कि डेली यूज की हमारी सारी चीजें
जिनमें से बहुत सारी चीजें विदेशों से आती हैं या विदेशी कंपनियां बनाती हैं। नोइंगली या अननोइंगली हमको उनका नॉलेज नहीं है, परंतु हम इन सब चीजों के लिए जो है वो रॉयल्टी पे करते हैं। और रॉयल्टी पे करने के साथ साथ में हमारा बहुत सारा जो पैसा है वो वहां जाता ही है। और हम चूंकि हमारी क्रिएटिविटी के होते हुए भी हम उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बिजनेस टेक्निक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से जो है डिफरेंट टाइप के राइट्स हैं और उन डिफरेंट राइट्स को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करके उनको बिजनेस में कन्वर्ट करें, खुद भी कैपिटलिस्ट बने, खुद भी हमारे पास में जो है वो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ना चाहिए, हमारे पास में वेल्थ बढ़ना चाहिए, सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज और टूल से यूजर्स को फायदा होना चाहिए, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। तो एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम ये जाने कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक सिंगल राइट नहीं है जिसके लिए हम आगे आते हैं। ये जो है बंडल ऑफ राइट्स है। तो बंडल ऑफ राइट्स के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी से एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जिससे आपको ये बाकी सारी चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। हो सकता है कि बहुत लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी आप लोगों में से, परंतु हमारा देश चूंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच है, इसलिए हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक छोटी सी कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी, वो अंधी थी, उसका एक बेटा था, वो कुछ नहीं करता था। बुढ़िया का काम यह था कि वो जंगल में जाती, वहां से लकड़ी लाती, उसके 2 गट्ठर बनाती, एक गट्ठर बाजार में बेचती, उससे जो पैसा आता उससे सामान खरीदती और खाने पीने का सामान लेकर के खाना बनाती, और बेटा खाता और मस्ती में रहता। बहुत समय तक इस तरह से गुजरता चला गया। एक बार ऐसा समय आया कि बुढ़िया जो है वो रास्ता भटक करके किसी दूसरे जंगल में पहुंच गई और जाके एक बड़े गड्ढे में गिर गई। अब उसने जो है चूंकि अंधी थी, उसको पता भी नहीं था कि हमको कैसे निकलना है, तो उसने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, बहुत रोई, पर कोई वहां होता तो सुनता। अंत में वन देवता को दया आई तो उन्होंने आकर के उस बुढ़िया को बाहर निकाला। बाहर निकाल के उससे कहा कि हमने देखा है कि तुम बहुत गरीब हो, बहुत दुखी हो, इसलिए हम तुमको एक वरदान देना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी सी बात आपके साथ में और शेयर करना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अचानक उसके ऊपर मुश्किल आ जाए या परेशानियां पड़ जाए तो उसका जो दिमाग है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। क्योंकि बुढ़िया गड्ढे में गिरी हुई थी, वो बड़े मुश्किल से बाहर निकली थी, इसलिए उसका जो दिमाग है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। जैसा कि हम देखते हैं कि हम यदि कोई हाईवे या कोई सड़क क्रॉस कर रहे हो, हमने दोनों तरफ से देखा, हमको क्लीन नजर आया, पर तो जैसे ही हमने जो है वो सड़क में मुश्किल से 4 कदम चले, बहुत तेजी से कोई यदि वाहन चला रहा है, उसको देख करके क्या होता है, हमारी स्थिति ये होती है कि हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। हम खुद ही नहीं सोच पाते हैं कि हम बचने के लिए क्या करें, इसलिए आप जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आपका सेंसेशन ठीक होता है, तब फिर ये देखते हैं कि सामने वाला जो ट्रक है आपको देख करके उसने ब्रेक लगा लिया या व्हीकल ने ब्रेक लगा लिया, तो आप बच गए, यानी आपकी जान बच गई। तब आपको समझ में आता है कि आपको पीछे या आगे अब कहां जाना है। वही स्थिति बुढ़िया की थी। बुढ़िया ने कहा कि मुझे भाई बहुत, मैं डर गई हूं, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो। उन्होंने कहा ठीक है तुम सोच लो, परंतु मैं तुमको सिर्फ एक ही वरदान दूंगा, एक से ज्यादा वरदान नहीं दूंगा। बुढ़िया ने कहा ठीक है, मुझे जरा सा वक्त दो, मैं सोच करके और फिर वरदान मांगती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद जो बुढ़िया जो है वो नॉर्मल हुई, तो उसने एक वरदान मांगा। तो यहाँ भी हम एक बात और आपको कोट करना चाहते हैं कि जब हम हायर सेकेंडरी में या मैथ्स का जो हमारा स्टूडेंट है वो 12th में जब कोई भी सम या इक्वेशन सॉल्व करता है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उस क्वेश्चन को हम वर्ड टू वर्ड धीरे धीरे पढ़ते हैं और पढ़ के स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। वही जो है ये सेंटेंस देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है, जिसमें बुढ़िया ने अपने लिए क्या मांगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाता देखूं। अच्छे से एक बार और सुनिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाता देखूं।
तो सबसे पहले अब देखिए एक एक जो है वर्ड से हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने पोते को, भाई उसका लड़का कुछ नहीं करता है तो उसको कोई लड़की क्यों देगा, बहू कैसे आएगी? तो यानी उसने पोते को मांगा तो पोते के साथ में उसकी बहू भी हो गई और पोता भी हो गया। ठीक, पोते को सोने के कटोरे में, तो सोने का कटोरा किसके पास होगा? सोने का कटोरा उसी के पास में होगा जो बहुत धनवान होगा, तो उसने धन भी मांग लिया ढेर सारा। दूध पिलाता तो दूध किसके पास में होगा? जिसके पास में बहुत सारा पशुधन होगा, जिसके पास बहुत सारी कृषि होगी, तो धन के साथ में धान्य भी मांग लिया उसने। और देखूं तो अंत में अपने लिए उसने आंखें भी मांग ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बुढ़िया ने एक ही सेंटेंस में चतुराई से वो सारी चीजें, यानी बंडल ऑफ जो वो था डिमांड्स थी वो कर ली, और कहने के लिए था कि हमने तो सिर्फ एक ही वरदान मांगा। यही बात लागू होती है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोसेस जो है हमारे यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की है, तो इसमें भी किसी भी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में जो है नंबर ऑफ राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, परंतु हम उनके बारे में हमें उनकी जानकारी नहीं होती। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यह है कि हम लोग रोजाना पेन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2 रुपए का पेन हो, चाहे 5 रुपए का पेन हो, चाहे 10 रुपए का हो, और चाहे लाख रुपए का पेन हो। पर पेन का बेसिक जो वर्क है वो क्या है? राइटिंग। तो जो पेन हम इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि उस पेन में कितने सारे राइट्स हैं? सबसे पहले जब हम कोई भी पेन परचेज करने के लिए जाते हैं किसी स्टेशनरी शॉप में, तो सब क्या कहते हैं कि भाई पेन दिखाओ। वो आपको 4-5 पेन दिखाता है। 4-5 पेन में से आप चला के देखते हैं, उनमें से 2 या 3 जो भी पसंद आते हैं, चलाने पर आप उनको एक किनारे में रख देते हैं। फिर उन सारे पेन में से 3 आपने सेलेक्ट कर लिए। फिर 3 में से आप फिर देखते हैं कि उसमें दिखने वाला सुंदर सा कौन सा पेन है। फिर उनमें से भी आपने एक रिजेक्ट करके 2 पेन रख लिए, और दोनों में फिर ये देखते हैं कि कौन सा किस ब्रांड का है। जो ब्रांड ज्यादा पॉपुलर होता है उस ब्रांड का पेन आप रख लेते हैं। तो यहां पर यदि हम ये देखें कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो पेन लिखता है, लिखने में जो स्मूथ चलता है वो क्या है? इंक फ्लो मैकेनिज्म। इंक फ्लो मैकेनिज्म हर पेन की अलग अलग होती है, और ये जो टेक्नोलॉजी है इंक फ्लो मैकेनिज्म, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है हर कंपनी की। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या लिया हुआ है? पेटेंट। दूसरा, जब हमने ये देखा कि दिखता कैसा है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जिस तरह से दिख रहा है उसको, उसकी सुंदरता पर हम जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मजबूत है या नहीं। तो ये इसका जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में ये रजिस्ट्रेशन है। तो एक राइट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो हो गया पेटेंट, दूसरा राइट हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन, और तीसरा फिर आपने देखा कि किस कंपनी का है। जो भी कंपनी आपको लगती है कि इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, आप उसका परचेज करते हैं, चाहे वो रेनॉल्ट का हो, चाहे पार्क का हो, या मोन्टेक का हो, या जो भी जो कंपनी डिफरेंट आती है। तो यानी तीसरा जो है आपने ब्रांड वैल्यू देखी, तो ब्रांड वैल्यू मतलब ट्रेडमार्क, जिस मार्क से वो बिजनेस कर रहा है वो ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रेशन है। चौथी चीज है कि कई सारे जो ऐसी कंपनीज हैं जो कोई ना कोई जो है स्लोगन या लोगो अपने उसके साथ में रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेस्टेस दूध पीता है इंडिया, तुरंत आपके दिमाग में किसकी तस्वीर आ जाती है? अमूल की तस्वीर आ जाती है। कुछ मीठा हो जाए तो किसकी तस्वीर आ जाती है? कोई बताएगा? कैडबरी चॉकलेट की, जो भी है। तो इस तरह से यानी जो चॉकलेट की तस्वीर आपके दिमाग में आ गई कि कुछ मीठा हो जाए, यानी मीठे का मतलब किससे होता है? चॉकलेट से। तीसरा, लिखते लिखते लव हो जाए। तो इस तरह से एक मोन्टेक कंपनी थी जिसने जो है वो एक स्लोगन अपना इसके लिए बनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ। एक और स्लोगन आया था कि लिखते लिखते लव हो जाए। कोका कोला के लिए एक फार्मूला है, कोका कोला के लिए कुछ ठंडा मतलब कोका कोला। तो यानी इस तरह से बहुत सारे जो स्लोगन्स हैं ये भी आपके जो राइट हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इवन नोकिया की ट्यून देख लें, सैमसंग की ट्यून देख लें, एप्पल की ट्यून देख लें, ये सारे के सारे जो हैं कॉपीराइटेड
प्रोटेक्ट है। तो इन प्रोटेक्शन की वजह से इनको हम कहते हैं बंडल ऑफ राइट्स। तो एक ही प्रोडक्ट में, चाहे वो 2 रुपए का ही क्यों ना हो, उसमें पेन जैसे छोटे आर्टिकल में भी पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और उसमें यदि मान लो घड़ी हो या कैमरा लगा हुआ हो तो लेआउट, डिजाइन टू इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा भी दूसरा जो राइट है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब छोटे से पेन में इतने सारे जो राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व हैं, तो जो आप गैजेट यूज करते हैं, जो पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टैब यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, या आप इसके अतिरिक्त जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितने सारे राइट्स इन्वॉल्व हैं। नैनो जैसी छोटी गाड़ी में लगभग 40 से ज्यादा पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे जो राइट हैं वो इन्वॉल्व थे। तो बाकी दूसरी कंपनियों के बारे में जो इतने सारे जो व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीजें बना रहे हैं, उसमें कितने सारे राइट्स होंगे, इसका अंदाजा लगा पाना आपके इमेजिनेशन पर हम छोड़ते हैं। एक छोटा सा मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन जो हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फोन को जब हम देखते हैं तो एक जरा सा फोन है, परंतु उसमें कितने सारे फीचर्स हैं, कितनी सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। कैमरा भी है, रिकॉर्डर भी है, एफएम रेडियो भी है, उसमें आपके जो है इंटरनेट कनेक्शंस भी हैं, बहुत सारे जो है ऐसे फीचर्स भी हैं जिनका आपको जो पीसी या लैपटॉप में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सारे फीचर्स को यदि जो एक स्टैंडर्ड स्मार्टफोन है उसमें लगभग 2.5 लाख क्लेम्स हैं। 2.5 लाख क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि एक पेटेंट एप्लीकेशन में अधिकतम 10 क्लेम जो हैं वो रखे जाते हैं। यदि ज्यादा क्लेम उसमें यदि आप डालते हैं तो पर क्लेम के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो यदि हम ऑन एन एवरेज 10 क्लेम की भी बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 2500 के आसपास जो पेटेंट हैं वो एक सिर्फ स्मार्टफोन में इन्वॉल्व हैं। तो चूंकि हम लोगों ने कभी इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश नहीं की या बहुत हमने फोकस नहीं किया, इसलिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका हम डेली यूज कर रहे हैं, परंतु उसके बारे में हमारे दिमाग में जो चीजें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि हमने कभी उस तरीके से उसको सोचने की कोशिश नहीं की है। परंतु यदि आप सोचेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, आपके सोचने का नजरिया ही टोटल बदल जाएगा। सुबह आप जब उठते हैं तो जब चाय, शक्कर, टूथपेस्ट, टूथब्रश का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि कहीं आप डिजाइन यूज कर रहे हैं, तो कहीं आप ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, कहीं सर्विस मार्क यूज कर रहे हैं, इवन बेड शीट्स हैं या बेड हैं या बुक्स हैं तो आप कॉपीराइट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं उसमें आप पेटेंट आप इन्वॉल्व हैं। कहीं पर जो है वो जब आप गजक खाने जाते हैं या साड़ी पहनते हैं तो महेश्वरी साड़ी हो या चंदेरी साड़ी हो, वहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन्वॉल्व है। यदि आप खाने में तिरुपति गए हैं, वहां से लड्डू लेके आए हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तिरुपति लड्डू का है, आगरे के पेठे का है, दालमोट का है, कोल्हापुरी चप्पल का है, दार्जिलिंग टी का है, पश्मीना शाल का है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में, और इवन आप पुलाव भी बना रहे हैं तो जो बासमती राइस इस्तेमाल करते हैं वो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट टाइप के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, परंतु कई नोन है और कई अननोन है, या कुछ जगह पे हम अवेयर हैं और कुछ जगह पर अवेयर नहीं है। तो इन सब बातों के साथ में हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए आपको कुछ जो डिटेल है वो इसके बारे में बताएंगे आपको। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो? Yes, sir, we are able to hear. ओके, थैंक यू। तो आप सभी लोगों का हमारे वर्चुअल एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर
आप सब ये देखेंगे कि हमने एक ईमेल शेयर किया हुआ है, तो फ्यूचर में आपको कभी भी किसी तरह की कोई भी आईपीआर से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप सॉरी फोन करने के बजाय यदि हमारे ईमेल पर कोई भी क्वेरी करते हैं तो हम आपको क्विक और जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है वो देंगे। तो ये आप सभी लोग नोट कर लें, pic.mpcst97@gmail.com। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी की बहुत वैल्यू होती है और खासतौर पर कोरोना के बाद तो हमने खुद देखा है कि प्रॉपर्टी का जो है वो उनके रेट्स बढ़ना या रेट्स उनके कम होना, या किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या किसने कितनी प्रॉपर्टी अपनी लूज की है, कितने लोगों के जॉब गए हैं, ये सब चीजें देखी हैं। तो यहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी, दूसरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, जिस पर अधिकार दिखा सकते हैं और उसको हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं या किसी के भी कंट्रोल में वो होती है। तो ऐसी भी जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसको हम हम होल्ड करते हैं, रखते हैं, फिजिकल कंट्रोल हमारा होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज में भी दो तरह के जो है इनके क्लासेस हैं, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। यदि आपके पास में ऑर्नामेंट्स है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या चेयर है, लैपटॉप है, गैजेट है, तो ये सारे मूवेबल कैटेगरी में आएंगे जिनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जबकि दूसरा जो है इमूवेबल है, जैसे बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है, आपका कैंपस है या फॉर्म है या गार्डन है, ये सारे जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज में काउंट होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टीज, इनका अधिकार जानने के लिए या किसको बिलोंग करता है, आपके पास में या तो उस प्रॉपर्टी की रिसीप्ट या जो रजिस्ट्री पेपर्स हैं वो होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, कौन उसका ऑनर है। दूसरी प्रॉपर्टी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फील कर सकते हैं परंतु हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, उस पर उसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, ना उसको हम चुरा सकते हैं, ना छीन सकते हैं। ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ये जो है ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। क्रिएशन ऑफ माइंड का कोई भी यदि आइडिया है और वो आइडिया यदि किसी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके हम उसका जो अधिकार है, उसकी जो प्रोसेस है, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जिस दिन वो ग्रांट हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, उसका अधिकार हमारे पास हो जाता है। फिर उसको हम टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरह किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारे जो हैं इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं। तो इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। हमारे यहाँ के चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, एसोसिएट प्रोफेसर्स हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या स्टूडेंट हो, ये सभी जो है इनका कैटेगराइजेशन इंटेलेक्चुअल, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पर किया गया है। जो जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा उसका पद उतना ही बड़ा होगा, जो जितना कम इंटेलेक्चुअल होगा उसका पद उतना ही छोटा होता है। इसी बात से आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, एंड दिस इज द वैल्यू टू सोसाइटी। वैल्यू टू सोसाइटी क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो आती हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट फॉर्म में हो, चाहे प्रोसेस फॉर्म में हो, चाहे थॉट के फॉर्म में हो, चाहे बुक्स के फॉर्म में हो, यदि ये चीजें जो आती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन उनको लर्न करने के लिए, उनको यूज करने के लिए और उनको उनकी लाइफ को इजी बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि किसी ने एयर कंडीशनर नहीं बनाया होता, किसी ने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई होती, रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया होता, बल्ब नहीं बनाया होता, तो हमारी जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल क्या मेंटेन रह पाती? पॉसिबल ही नहीं था। तो यानी जिस भी इन्वेंटर ने उसको बनाया, उस इन्वेंटर ने उसका पेटेंट लिया
पेटेंट लेने के बाद में उसका कमर्शियलाइजेशन करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया, जो प्रोडक्ट मार्केट में आए उसको जो है एंड यूजर तक यानी कंज्यूमर तक उसका यूज किया, भले इसके लिए उसने जो है वो पे किया हो, पैसे खर्च किए हों, परंतु उस सब की वजह से उनकी जो लाइफ है वो आसान हो गई। तो इस तरह से जो है दिस इज वैल्यू टू द सोसाइटी। रामायण है या महाभारत है या प्रेमचंद की कहानियां हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है लिटरेचर है, ये स्टोरी हैं, या कोई और, या साइंस टेक्नोलॉजी से आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज की जो भी बुक्स हैं जिन राइटर्स ने भी लिखा है, ये सारी की सारी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। तो यहाँ पर यदि हम नट सेल में देखें तो जो डिफरेंट टाइप की इंडियन सिनेरियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हैं पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शंस। तो पेटेंट्स जो है वो एक्सक्लूसिव राइट है, जिसको हम हिंदी में एकस्व भी कहते हैं। ये किसी व्यक्ति को मिलता है, और जो यहाँ हम एक्ट की बात नहीं करेंगे परंतु इन जनरल बात हम आपको समझाएंगे कि पेटेंट क्या है। तो पेटेंट एकस्व है, एकाधिकार है, किसी भी इन्वेंशन या इनोवेशंस के का जो प्रोडक्ट या प्रोसेस जो भी उसने बनाई है उस पर उसने एकाधिकार ले लिया कि उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति यदि जब राइट मिल जाता है तो कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बगैर, और वो उसको चाहे तो कई लोगों को इस्तेमाल करने दे सकता है, उसको उसके प्रोडक्ट्स बना सकता है, बनवा सकता है, लाइसेंस दे सकता है, और इस तरह से जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो यदि मार्केट में आता है तो उसकी जो मल्टीपल नंबर्स जब बाजार में आएंगे तो नेचुरली सभी लोगों को उसका जो फायदा है वो मिलेगा। इसका मैक्सिमम जो पीरियड है वो 20 इयर्स होता है। पेटेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें फार्मा सेक्टर में लोगों ने कमाया, बहुत मेडिसिन में सबसे ज्यादा इसका जो है यूज हुआ है, और 20 इयर्स तक जो इस्तेमाल करने के बाद में 20 इयर्स के बाद 1 सेकंड भी यदि ज्यादा होता है तो आपका जो पेटेंट है वो पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पेटेंट आप फिर फर्दर कोई भी उस पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकता है। तो दूसरा आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 2000 के अंतर्गत कोई भी एक्सटीरियर अपीयरेंस, चाहे आप पेन देख लें, चाहे आप बुक देख लें, चाहे आप पर्स देख लें, चाहे लैपटॉप आप देखें, चाहे स्मार्ट गैजेट्स देख लें, चाहे आप पहनने वाले अपैरल्स देख लें, या जूते चप्पल देख लें, या गॉगल्स देख लें, या स्पैक देखें, इन सभी का जो है सभी कंपनी के जो डिजाइन्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, वो सब अलग अलग होते हैं और उन पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये रजिस्ट्रेशन 10 इयर्स तक के लिए वैलिड होता है, फिर 5 इयर्स तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेडमार्क में हम 3 बातें करते हैं, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क। तो ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क जो बेसिकली हैं, जो ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको ट्रेडमार्क दिया जाता है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको सर्विस मार्क दिया जाता है। ये जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत जैसे टाटा है, मारुति है, सुजुकी है, हुंडई है, होंडा है, या एविएशन की कंपनीज हों, ये सब जो हैं वो ट्रेडमार्क, रिलायंस है, ये सब जो है ट्रेडमार्क के अंतर्गत आते हैं। जबकि जितने भी बैंक्स हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे SBI का एक डिफाइंड लोगो है, सेंट्रल बैंक का डिफाइंड लोगो है, एक्सिस बैंक का डिफाइंड लोगो है, IDFC का है, ICICI का है, आप लोगों से उनकी पहचान करते हैं। तो ये सारे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका जो लोगो है ये सर्विस मार्क कहलाता है। तो इस तरह से ट्रेड और सर्विस दोनों को प्रोवाइड करने वाले ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में गवर्न होते हैं। इनकी जो इनिशियल जो पीरियड है वो आपको 10 इयर्स का मिलता है। 10 इयर्स के बाद में 5 इयर्स के लिए आप इनको कंटिन्यूसली अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनियां भी जो हैं वो सिमिलर ट्रेडमार्क से अपना बिजनेस कर रही हैं। उसका रीजन यही है कि बिजनेस यदि आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, आप इसको एक्सटेंड कराते जाएंगे तो वो आपका जो मार्क है वो लाइव रहेगा, इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है और ये एक्सपायर नहीं होगा। कॉपीराइट एक्ट 57 के बाद में 2012 तक लगातार इसमें जो ओरिजिनल एक्ट है 1957 का है, 2012 में फिर इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं।
ये कॉपीराइट खासतौर पर लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो से लेकर के इवन जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। परंतु यदि कोई जो ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर के साथ में एम्बेडेड है तो उसको पेटेंट कराया जा सकता है, परंतु इंडिया में जो है वो किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो वो कॉपीराइट ही होगा। परंतु यूएस में भी आप देखेंगे या यूरोप के कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर पेटेंट्स होता है। इसलिए मेनली बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो वहां से इंपोर्ट होती हैं जिनके साथ में वो प्रोग्राम है, इंडिया में वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको कॉपीराइट एक्ट के तहत ही गवर्न किया जाएगा। ये जो है ग्लोबल राइट है, ये सिंगल पर्सन लेता है, तो यानी इसकी जो टेरिटोरी है वो सिर्फ ना इंडिया, यदि इंडिया में भी इसने लिया है या कोई भी आप नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो ये ग्लोबली एक्सेप्ट होता है। और ग्लोबली एक्सेप्ट होने की वजह से आपको किसी अदर कंट्रीज में जाकर के उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों तरह के होते हैं। यदि आप किसी मार्क को लगातार बहुत सालों से यूज कर रहे हैं परंतु आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की श्रेणी में आएगा। और इसी तरह से यदि आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आपने कोई पोयम लिखी है परंतु उसको आपने सिर्फ जो है न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पब्लिश करा दी है तो कॉपीराइट तो हो गई, परंतु उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना होता है। यदि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट दे करके उनका फॉर्म फिल करके अपना जो वर्क है उसको उनको सबमिट करते हैं, उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको आप सेटिस्फाई करते हैं, तब वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में जो बेसिक एक डिफरेंस है वो ये है कि यदि कि कोई दूसरा आपकी जो है इसको राइट को चुरा करके ट्रेडमार्क के या कॉपीराइट के कहीं डुप्लीकेसी करता है या कहीं उसको प्रोड्यूस करता है तो यदि अनरजिस्टर्ड है तो आपको कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए सारे प्रूफ आपको देना पड़ेंगे कि ये आपका ही प्रोडक्ट है, आपकी ही प्रोसेस है। जबकि यदि रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही सबमिट करना पड़ेगा कि ये हम इसे समय से इस्तेमाल कर रहे थे परंतु इसने वायलेशन किया है इसलिए ये पेनलाइज किया जाए या इसको इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। तो इन चीजों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। ये सारे जो हैं वो कॉपीराइट को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो टेरिटोरियल राइट्स हैं, मतलब जिस कंट्री में आपने अप्लाई किया है उसी कंट्री में आपको मिलेगा, बाकी जगह को जो है आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा या आपको पीसीटी एप्लीकेशन या मैड्रिड एप्लीकेशन जो ट्रेडमार्क के लिए है और पीसीटी एप्लीकेशन जो पेटेंट के लिए है वो आपको यहाँ से फाइल करना होगी। कि एक एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं फिर उसके बाद यदि एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो जिस कंट्री में आप फाइल करना चाहते हैं वहां की फी और एग्जामिनेशन करा के आप वहां भी उसका राइट ले सकते हैं। परंतु पहले ये प्रोसेस थी कि आपको हर कंट्री में सेपरेटली अप्लाई करना होता था जो बहुत एक लेंथी और एक्सपेंसिव प्रोसेस थी। तो कॉपीराइट ग्लोबल राइट है, बाकी राइट्स जो है टेरिटोरियल राइट्स हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इंडिया में जो है वो 2000 का एक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जो हम गैजेट्स में या लैपटॉप में या पीसीज में जो हम सर्किट देखते हैं कभी ओपन करने के बाद में, तो उसमें आपको जो सर्किट्स दिखाई देते हैं वो हर कंपनी के डिफरेंट होते हैं। इसलिए यदि आपके पास में सैमसंग का टीवी है या आपके पास सोनी का टीवी है तो किसी भी कॉमन जो सर्विस सेंटर है उसमें जाने से वो आपको रिफ्यूज कर देता है। आपको पर्टिकुलरली उसी सर्विस सेंटर में ले जाना होता है क्योंकि उसका जो लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसका जो ट्रेनिंग है उसी मैकेनिक को दी जाती है जो उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा होता है, तो इसलिए वो उसको आसानी से ठीक कर सकता है। तो यानी इसकी जो है अपनी एक यूनिकनेस होती है और चूंकि वो जो सर्किट हैं हर कंपनी के अलग अलग होते हैं इसलिए वो उस पर उनका भी राइट होता है। ये राइट 10 इयर्स का होता है और इसको चाहे तो फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु 10 इयर्स में ही इसकी जो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर ली जाती है क्योंकि फर्दर अपडेशन होने से बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती हैं। तो जो सर्किट एक बार बन गए हैं उनमें लगातार अपडेशन ही होना है, वो उसका इस्तेमाल 15 साल या 20 साल तक लगातार होना पॉसिबल नहीं होता है। कॉपीराइट का भी जो हमने बात की है वो आप देखेंगे कि कॉपीराइट का जो पीरियड है वो भी ट्रेडमार्क का जैसे जो है एंडलेस होता है, कॉपीराइट का लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। यानी किसी ने राइट लिया है तो उसकी लाइफ यानी जिस दिन उसकी डेथ होती है उसके बाद भी 60 ईयर तक
वो जो राइट है उसके पास रहेगा लिटरेरी वर्क के लिए। पर कोई ड्रामेटिक वर्क है, यदि कोई वीडियो वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है या ऑडियो वीडियो है, तो उसका राइट जो होता है वो 25 ईयर्स तक होता है कैलेंडर ईयर्स की डेट से। मतलब 1 जनवरी जिस भी ईयर में रजिस्टर हुआ है वो, उससे लेकर के 10 ईयर्स 25 ईयर्स आप काउंट कर लें, तब तक उसके पास अधिकार रहेगा। इसके बाद वो जो है पब्लिक डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या ट्रेड सीक्रेट भी कहते हैं। इसमें दो पार्टीज आपस में जो भी उनके पास में प्रोडक्ट या प्रोसेस है उसके बारे में वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम किसी को इसका जो फार्मूला है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये सिर्फ दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है। इसमें राइट के लिए रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, परंतु ये सबसे सेफ है, ये एंडलेस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोका कोला का जो टेस्ट है वो आज भी ज्यों का त्यों है। रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद भी हम उसका जो फार्मूला है वो ब्रेक नहीं कर पाए। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले जब कोका कोला का फार्मूला बना था तो उन्होंने पहले पेटेंट कराया। पेटेंट कराने के बाद में 20 ईयर्स में वो एक्सपायर हो गया। तब उन्होंने कहा कि यदि हम इस पर अपना एक्सक्लूसिव राइट रखना चाहते हैं तो क्या करें। तो उनके दो भाई थे, दोनों भाइयों ने कहा कि 50-50% फार्मूला हम नए सिरे से बनाते हैं। दोनों ने फार्मूला बनाया, 50-50% फार्मूला बनाने के बाद में दोनों ने उनको मिक्स किया। एसिमुलेशन के बाद में जो नया प्रोडक्ट बना वो था कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक। तो उसका यूनिक टेस्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाएंगे आपको सिमिलर टेस्ट ही मिलेगा। और किसी भी तरह की इंजीनियरिंग से या रिवर्स इंजीनियरिंग से भी आप उसको ब्रेक करके नया प्रोडक्ट आज तक नहीं बन पाया है, जबकि 1 सेंचुरी से ज्यादा टाइम बीत गया है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इसी तरह से आप देखते हैं कि चाहे मैकडोनल्ड हो चाहे डोमिनोज हो, इनके भी जो प्रोडक्ट हैं उनको आप देखेंगे कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में कॉर्नर में आप जा करके यदि कोई भी उसको यूज करता है, कोई भी टेस्ट करता है, तो उसका जो टेस्ट है वो सिमिलर टेस्ट वर्ल्ड वाइड आपको मिलेगा। एक और प्रोडक्ट है WD-40। आप खुद भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाएं तो देखेंगे कि रस्ट फ्री करने के लिए एक ऐसा लिक्विड बनाया गया है जिसको WD-40 के नाम से बेचा जाता है। किसी भी तरह की रस्टिंग हो, कोरोजन हो, यदि उसको आपको ठीक करना है तो WD-40 से बेहतर कुछ नहीं है। परंतु तो आज भी उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को कोई पर्सन ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशंस के एग्जांपल हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में हमने आपको बताई था कि ये एक्ट 1999 के अंतर्गत है। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में यदि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हैंडलूम प्रोडक्ट है या फूड स्टफ है, तो ये जो चीजें हैं ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन होता है। ये ग्रुप राइट होता है, ये सिंगल पर्सन को नहीं मिलता। ये भी 10 साल के लिए मिलेगा और 10 साल के बाद इसको फिर से आपको 5-5 साल के लिए आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। जैसे बासमती राइस है, आगरे का पेठा है, चंदेरी साड़ी है, महेश्वरी साड़ी है, रतलामी सेव है, झाबुआ का कड़कनाथ है, लेदर के टॉयज है इंदौर के, दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल वर्क है। ये सारे जो हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में आते हैं। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इवन बनारसी साड़ी भी इसमें इंक्लूड होती है, तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है कि कोई भी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो जो बनाने वाला है उसको प्रॉपर प्राइस मिलना चाहिए, नकली चीज बाजार में ना जाए, जो बायर्स है उसको भी असली मिले और जो सेलर है उसको भी जो ऑथेंटिक प्राइस पर या जो उसने मेहनत की है उसके मेहनत का उसको जो सही प्राइस है, ये जो अमाउंट है उसको मिलना चाहिए। और जो पर्सन को भी जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो मिले। अन्यथा जो है मार्केट में तो बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें आती हैं जिसकी वजह से ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेसी में अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्लांट वैरायटीज भी एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में बना, जिसमें हम लोग जैसा देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो शिमला मिर्च आते हैं, पहले जो नॉर्मल शिमला मिर्च है वो किस कलर का है, कैप्सिकम ग्रीन, परंतु यदि आपको येलो और रेड वो मिल रहा है, या वाटरमेलन आपको थ्रू आउट द ईयर मिल रहा है, या मैंगो की वैरायटीज आपको थ्रू आउट द ईयर मिल रही है, या रोज की वैरायटी आपको ब्लैक और ब्लू कलर में मिल रही है, तो ये जो ऐसे प्लांट वैरायटीज हैं जो लैब में या फील्ड में डेवलप की गई हैं, एग्रीकल्चर
फार्मर्स के द्वारा या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा, और उन पर उनको 12 साल का जो है वो राइट मिला है कि वो उसका जो सीड है या प्लांट है वो बेच करके उसकी रॉयल्टी को गेन कर सकते हैं। इस पीरियड के बाद में वो फ्रीली पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेटेंट ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट आईपी राइट है। पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लेआउट, डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन भी सभी इक्वली इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि कॉपीराइट को छोड़ करके बाकी सारे जो राइट्स हैं वो सब इंडस्ट्रियल राइट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम इनको बिजनेस में या इंडस्ट्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि कॉपीराइट तो ऑलरेडी जो है इंडिविजुअल ग्लोबल राइट है, जिसमें वो चाहे तो पब्लिशर से बुक अपनी पब्लिश कराए या ना कराए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक बात हम आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहते हैं कि कभी भी यदि किसी भी तरह से आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, क्योंकि रिसर्च वर्क का जो एंड प्रोडक्ट है वही किसी न किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में होता है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस है कि वर्क कंप्लीट होने के बाद में सबसे पहले हम किसी इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल में अपना वर्क पब्लिश कराने चले जाते हैं या अपना पेपर भेज देते हैं। उसके पहले आप ये जरूर सर्च करके देख लें कि क्या उससे कोई प्रोसेस या प्रोडक्ट निकल के तो नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो सबसे पहले आप जो है पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करें, और पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में फिर जो आपका जो वर्क है वो रिसर्च पेपर फाइल करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉवेल्टी लूज नहीं होगी, आपको जो पेटेंट है पेटेंट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे, वैलिडिटी आपकी वो रहेगी। और यदि आपको पेटेंट एप्लीकेशन आपकी एग्जामिन होने के बाद में ग्रांट हो जाती है तो उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद यदि कॉपीराइट भी होता है तो आपके पास में पेटेंट के साथ में, कॉपीराइट के साथ साथ में पेटेंट का भी राइट मिलेगा और आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि नॉर्मली आजकल देखते हैं कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में आपके सीवी में ये पूछा जाता है कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, इसके साथ साथ में कि आपने कितने पेटेंट या आईपीआर जो हैं वो फाइल किए हैं और कितने ग्रांट हुए हैं आपको। तो यदि आपने एप्लीकेशन अपनी फाइल की है या ग्रांट हुए हैं तो आपकी वैल्यूज इतनी बढ़ा देते हैं कि दूसरों के कंपटीशन से आप काफी हायर हो जाते हैं, काफी ऊपर पहुंच जाते हैं। और आपका जो बायोडेटा है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए जो भी इंटरव्यूअर है या जो भी इंस्टीट्यूट है उसको बाध्य कर देता है। तो यहाँ पर यदि हम फिर इन सारे जितने भी हमने आईपीआर देखे हैं उन सारे राइट्स को देखने के बाद में हम देखेंगे कि जितने भी पेटेंट फाइल होते हैं या एप्लीकेशन उनकी जो है ग्रांट होती है, रजिस्टर होते हैं, उन सबका एक डेटाबेस बनता है। 2005 तक जो था कि पहले तक वो हार्ड कॉपी में अलग अलग कंट्री अपना डेटाबेस बनाते थे और उनको बुक फॉर्म में या जर्नल के फॉर्म में पब्लिश करते थे। तो इंडिया का जो 2005 तक का जो डेटाबेस है वो इकस्वा ए, इकस्वा बी, इनपेट, इंसडॉक, DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये इन्होंने 72 से लेके जून 2002 तक इसको मेंटेन किया है और इसको अपने पास में उनको CD फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। पर 2005 के बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने जो पेटेंट ऑफिस है, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, उन्होंने एक जर्नल पब्लिश करना शुरू कर दिया। वीकली जर्नल पब्लिश होता है, उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये उनका बहुत बिग डेटाबेस है। हम उनकी साइट पर जाकर के किसी भी पेटेंट की जो का स्टेटस है, किसी का पेटेंट का क्या है, कौन कौन सा पेटेंट ग्रांट हुआ है, वो सब हम देख सकते हैं। जिसका फायदा ये होता है कि रिसर्च का डायरेक्शन क्या है, कहाँ तक रिसर्च हो गई है। यदि हम कभी भी पेटेंट फाइल करने जाते हैं तो ये जो डेटाबेस है, चाहे यूरोपियन हो, एयर स्पेस हो, ग्लोबल हो, चाहे US का हो या इंडिया का हो, यहाँ पर हम जब डेटाबेस सर्च करते हैं किसी भी अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करने के पहले, और उसमें देखते हैं कि कौन सा पेटेंट ग्रांट हो गया है या कौन सा फाइल हुआ है, तो वो देखने के बाद में हमारी जो रिसर्च है या हमारा जो वर्क है वो हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ तक वर्क हो गया है, इसलिए अब इसके आगे का काम करना है। या हमने 5 साल काम किया, 5 साल के बाद में हम आए कि हमको तो पेटेंट फाइल करना है। परंतु जब हमने जो है प्रायर आर्ट सर्च की यानी पेटेंट डेटाबेस का सर्च किया तो उसमें देखा कि ये तो ऑलरेडी जो है 4 साल पहले ही किसी ने अपने नाम पर जो है वो ग्रांट करा लिया है, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है।
तो उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो पेटेंट डेटाबेस है इसकी जो सर्चिंग है वो सर्चिंग आपको जरूर करना चाहिए। अदरवाइज आपका जो पूरा पीरियड है, आपकी जो लेबर है, आपकी जो टैलेंट है और आपका जो समय है वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो प्रायर आर्ट सर्च और स्टेट ऑफ आर्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रायर आर्ट सर्च बेसिकली जिस तरह से हम पीएचडी करते हैं, वो पीएचडी करने में जो हम करने के लिए जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं, प्रीवियस लिटरेचर सर्वे करते हैं, उनका डेटाबेस तैयार करते हैं, वही काम जो है यहाँ पर प्रायर आर्ट सर्च का है कि वो ये जो पेटेंट डेटाबेस का डेटाबेस है इसके थ्रू हम डेटा को अपना सर्च करते हैं और देखते हैं कि अब इसमें नॉवेल्टी कौन सी बची हुई है, कौन सा काम आगे करने लायक है, किसका पोटेंशियल है, कौन कौन सा काम ऑलरेडी हो चुका है। जबकि जो स्टेट ऑफ आर्ट में आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है, किस तरह से क्लेम्स लिखना है, किस तरह से स्पेसिफिकेशंस लिखना है, वो जो आर्ट है वो जो स्टेट ऑफ आर्ट कहलाती है। क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने का जो फॉर्मेट है और जो पेटेंट एप्लीकेशन को तैयार करने का फॉर्मेट है, दोनों टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम जो है रिसर्च और टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जो है हमको टेक्नो लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए कि जो कोई एलएलबी या लॉ के टर्म्स से जो ज्यादा परिचित है, रूल से ज्यादा परिचित है, वही उस एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली फ्रेम कर पाता है। अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन की यदि क्वालिटी पुअर होगी तो एग्जामिनर हमारी एप्लीकेशन को में इतने सारे ऑब्जेक्शन लगाता है कि वो अल्टीमेटली हम उसका रिप्लाई नहीं दे पाते और हमारी जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आपको पेटेंट डेटा पे सर्च करना है तो सर्च करने के लिए अब लेटेस्ट जो है इतनी सारी जो वेबसाइट्स हैं ये अवेलेबल हैं। इन वेबसाइट्स में आप जाकर के इवन गूगल पेटेंट भी जो है इसमें आप अपना पेटेंट डेटाबेस सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी तक हमारे वर्क से रिलेटेड कौन कौन सा जो वर्क है वो रजिस्टर हो चुका है और कौन सा जो हम वर्क रजिस्टर कराना चाह रहे हैं ये यूनिक और नोवल है या नहीं है। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आईपी इंडिया या जो टाइफेक ipindia.nic.in, typec.org.in, uspto.gov, यूएस यूरोपियन पेटेंट, इससे रिलेटेड कुछ जो साइट्स हैं ये तो फ्री साइट्स हैं जिनमें जैसे इवन वाइपो की भी जो साइट है वो भी फ्रीली अवेलेबल साइट है जिसमें आपका जो डेटाबेस है वो फ्री में एक्सेस करने देता है। परंतु जो डेल्फियन है या डेरवेंट है, माइक्रोपैट है, क्वेस्टल है, थॉमसन इनोवेशंस हैं, इन्होंने माइक्रो लेवल तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं और जो पेटेंट्स हुए हैं उन सबका डेटाबेस उन्होंने मेंटेन किया है। मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट लगती है, इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि ये जो डेटाबेस हैं किसी अच्छे जो पेटेंट अटॉर्नीज हैं उनके पास ही अवेलेबल होते हैं और वो उसके बदले में जब वो प्रायर आर्ट सर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो सर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसके लिए काफी पैसा लेते हैं। उस सर्च रिपोर्ट के बेसिस पर जो तैयार किया हुआ आपका जो पेटेंट की एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट है वो बहुत वैल्यूएबल होता है और उसमें फिर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कम से कम आने की संभावना होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने काफी पहले भी जो बात की थी और जो आपको उसका पेन का एग्जांपल दिया था, दूसरा जो एग्जांपल है ये मोबाइल का, ये जो बिल्कुल बेसिक स्मार्टफोन जब आया था टच स्क्रीन, ये बड़ी स्क्रीन वाला जो जिसमें आपका कीपैड से चलता था, तब आप देखेंगे कि नोकिया का ये जो मोबाइल है जिसमें ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट एंड यूटिलिटी मॉडल हैं और डिजाइन्स हैं और ट्रेड सीक्रेट्स हैं, यानी इतने छोटे से मोबाइल में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व थी। ट्रेडमार्क क्या था? नोकिया, प्रोडक्ट नेम 225, स्टार्टअप टोन, इसकी ये सब ट्रेडमार्क में थी। इसी तरह से कॉपीराइट में इसका जो सॉफ्टवेयर है, यूजर मैनुअल है, रिंगटोन्स हैं, स्टार्टअप टोन है और इमेजेस हैं, ये कॉपीराइटेड थी। पेटेंट एंड यूटिलिटीज में डेटा प्रोसेस कैसा होता है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ऑपरेशंस ऑफ यूजर इंटरफेस कितना फ्रेंडली है, ये सब जो है ये पेटेंटेड था। जबकि किस तरह से फोन दिखता है, अरेंजमेंट और शेप ऑफ बटन्स किस तरह का है, पोजीशन और शेप ऑफ दी शेप किस तरह का है, ये भी जो है ये सब डिजाइन के अंतर्गत आता था। जबकि बहुत सारे जो टेक्निकल जो नो हाउ हैं जिनको उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, जिनको उन्होंने हाइड करके रखा हुआ था, वो सब के ट्रेड सीक्रेट्स थे जो पब्लिक के बीच में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो और ये भी एग्जांपल हमने आपको दे ही दिया है कि किस तरह से एक छोटा सा पेन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क इनका
जो है ये बंडल ऑफ राइट्स इन्वॉल्व है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऑल IPRs अप्लाई टू न्यू एंड ओरिजिनल नॉलेज एंड नॉट टू ऑलरेडी नोन, मीन्स ओल्ड नॉलेज मीन्स द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो कोई भी नया और ओरिजिनल नॉलेज होगा तभी वहां पर IPR अप्लाई होगा, ओल्ड नॉलेज पर नहीं होगा। पब्लिक डोमेन यदि हो गया है, पब्लिक के नॉलेज में आ गया है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट नहीं कराया जा सकता जब तक कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन या अपडेशन ना किया हुआ हो और उसको ऑफिस जो है पेटेंट ऑफिस वो एक्सेप्ट ना कर ले। तो पेटेंट क्या है? पेटेंट इज अ मोनोपोली राइट। ऐसा मोनोपोली राइट है इन्वेंटर का या इनोवेटर का कि जो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट को वो क्या करता है, उसके बदले में जो इन्वेंशन की पूरी डिटेल्स हैं सब डिस्क्लोज करके उसको डॉक्यूमेंट उनको गवर्नमेंट को दे देता है। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही उसको रजिस्टर उसका पेटेंट रजिस्टर होता है तो इन्वेंटर के अलावा कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कमर्शियल पर्पस के लिए। चूंकि पब्लिश हो गया है तो आप रिसर्च पर्पस के लिए तो कर सकते हैं, परंतु कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए सिर्फ वही कर सकता है या उसकी परमिशन से जिसको उसने राइट अपना ट्रांसफर किया हुआ है वो कर सकता है। लिमिटेड पीरियड यानी 20 ईयर्स के लिए मिलेगा। विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री मतलब जो टेरिटोरियल है, जिस भी कंट्री में उसने फाइल किया है वहां अप्लाई होगा। परंतु यदि उसने PCT एप्लीकेशन फाइल की है तो वो ग्लोबल पेटेंट यानी एक से ज्यादा कंट्री में भी एप्लीकेबल होगा और वहां वो मार्केट, प्रोडक्शन और जो अपना कैपिटल गेन है वो सब वहां कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पेटेंट है वो मोनोपोली राइट है इन्वेंटर का या पेटेंटी का। गवर्नमेंट उसके बदले जो है सारी इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज कर देती है, पब्लिश कर देती है ताकि लोगों के नॉलेज में आ जाती है। और नेगेटिव राइट क्या है इसका कि दूसरा कोई जो पेटेंटी है उसकी परमिशन के बगैर उसको यूज नहीं कर सकता और पेटेंटी चाहे तो उसको एक्सप्लॉइट करे या एक्सप्लॉइट ना करे या किसी को दे या ना दे उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। परंतु जहां लाइफ सेविंग और मोरल चीजें हैं जैसे कोरोना का वायरस है उसको कोई पेटेंट नहीं करा सकता क्योंकि इसमें जो लाइफ सेविंग है इसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत गवर्नमेंट लोगों के जीवन को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए वो जो है अधिकार अपने उसमें ले लेती है, उसको फार्मूले को अपने कंट्रोल में तैयार करती है और उसको लोगों के बीच में वैक्सीनेट करके या उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों की जान बचाती है। तो वहां पर जो है वो एक्सक्लूसिव यानी इससे हट करके डिफरेंट कंडीशन होती है। परंतु नॉर्मल कंडीशन में जो है पेटेंटी के राइट को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता उसके परमिशन के बगैर। क्या पेटेंट हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है कि क्या क्या पेटेंट नहीं हो सकता है। कोई भी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में है या पब्लिक ऑर्डर या मोरलिटी के अगेंस्ट में है। किसी ने कहा कि हमने तो एक ऐसा टेबलेट बनाया है जिसको खाने के बाद में आदमी मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, तो ऐसी चीजों को जो है वो पेटेंट नहीं कराया जा सकता। साइंटिफिक प्रिंसिपल या कोई फॉर्मुलेशन है या कोई थ्योरी है इसको भी पेटेंट नहीं कराया सकता है। कोई भी जो ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई न्यू प्रॉपर्टी पता चल गई है या नया इस्तेमाल पता चल गया है वो भी पेटेंटेड नहीं होगा। चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे मशीन से रिलेटेड हो या ऑपरेटर से रिलेटेड हो। यदि दो चीजों का हमने मिक्सचर कर दिया है तो ऐसा कंपोजिशन भी जो पेटेंट नहीं होगा जब तक कि उसमें नया मॉलिक्यूल ना बन जाए। इसी तरह से यदि हमने अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट को चेंज कर दिया है, मान लो कहीं लाल था उसको पीला और पीले को सफेद कर दिया है, तो भी जो अरेंजमेंट है या रीअरेंजमेंट है ये भी पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो भी पेटेंटेबल नहीं है। मेडिसिन, सर्जिकल, थेरेपी, ट्रीटमेंट चाहे एनिमल्स का हो चाहे ह्यूमन बींग्स का हो, उनकी कोई भी प्रोसेस जो है वो भी पेटेंटेबल नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई प्रोडक्शन होता है या प्रोपोगेशन होता है किसी प्लांट का या एनिमल का, यदि उसमें जो मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते हैं तो वो भी पेटेंटेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया था कि मैथमेटिकल या बिजनेस मेथड या कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिथम ये इंडिया में पेटेंटेबल नहीं है, यहाँ पर इनका कॉपीराइट होता है। परंतु कंप्यूटर से पर डेफिनेशन के अंतर्गत विदेशों में जो है वो एम्बेडेड होते हैं चूंकि हार्डवेयर से, इसलिए वहां पर पेटेंट हो सकता है।
टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो बताया था कि लेआउट डिजाइन टू इंटीग्रेटेड सर्किट में किसी भी टीवी का है या पीसी का है या गैजेट का है, तो वहां उनकी जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो लेआउट डिजाइन टू इंटीग्रेटेड सर्किट में रजिस्टर होगा, पेटेंट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो जनता के नॉलेज में है, ये लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसका भी कोई जो पेटेंट नहीं करा सकता। जैसा कि अभी ये क्या हुआ था कि जो हमारे योग के लगभग 153 आसन हैं, उसमें से 128 आसन बासमती राइस, हल्दी, इनको यूएस ने पेटेंट करा और फिर हमारी सरकार को CSIR की मदद से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद में उनको बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा, बहुत सारा लिटरेचर सर्वे करना पड़ा, लिटरेचर को ट्रांसलेट करना पड़ा, और ट्रांसलेट करने के बाद में जब वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के कोर्ट में, तब जाकर के जो है वो हल्दी, नीम, बासमती का जो पेटेंट राइट है वो रिवोक हुआ। और आज भी अभी भी जो हल्दी के 2 क्लेम हैं वो आज तक जो है विड्रा नहीं हो पाए हैं, भले अभी ज्यादा हो गए हैं, परंतु ऐसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं जो हमारे यहाँ के हैं, उनको दूसरे देशों ने अपने यहाँ पेटेंट कराना शुरू कर दिया था। इसीलिए फिर भारत सरकार ने और दूसरे देशों की सरकारों ने भी अपने यहाँ के जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं उनको कलेक्ट करना, तो कलेक्ट करने के बाद में उसको ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करने के बाद में उनको जो है वैलिडेट करना, साइंटिफिकली वैलिडेट करना, और फिर उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये बना करके जो है गवर्नमेंट ने रखी है, ताकि कोई भी पेटेंट फाइल होने के बाद में या किसी भी कंट्री में कोई पेटेंट फाइल होता है तो जिस कंट्री से उसने फाइल किया है, जिस कंट्री से उसका कंसर्न है, वहां के ट्रेडिशनल नॉलेज की लाइब्रेरी से वो डेटा लेकर के ये क्रॉस चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि उसने कहीं से उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को वायलेट तो नहीं किया है। अदरवाइज जो है लोगों को चोरी करने से रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस हैं, वो भी इन्वेंशंस को इंडिया में बैन किया हुआ है। आप यहाँ पर उसका अधिकार नहीं ले सकते हैं, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। यूएस में फ्री है, आप यूएस में चाहे तो करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो पेटेंट की ग्रांट की जो क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि न्यू होना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, यूजफुलनेस होनी चाहिए और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो पेटेंट की कैटेगरी में फाइल करने के लिए वो जो है सुटेबल होगा। तो इस तरह से कोई इन्वेंशन की जो डेफिनेशन है वो आप देखेंगे कि एनी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप एंड इज capable of industrial application is patentable, or you can file an application for patent. Otherwise यदि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसी में जो हमने ये 3 टर्म इस्तेमाल की हैं, तो न्यू और नॉवल क्या है? तो न्यू और नॉवल क्या है कि कहीं पब्लिश ना हुआ हो इंडिया में या कहीं भी। दूसरा जो है पब्लिक के यूज में या पब्लिक के नॉलेज में ना हो वो। तीसरा, उस स्पेसिफिकेशन को पहले किसी ने क्लेम ना किया हो, जैसे कि उड़ने वाली कार या उड़ने वाला स्कूटर, अभी तक जो था वो नॉन ऑब्वियस था, अभी तक कहीं उसकी चर्चा ही नहीं थी। पर तो पिछले साल किसी ने सक्सेसफुली जो है वो फॉरेन में उसको वो कर दिया, दिखा भी दिया उड़ा करके, और उसका जो है उसने पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल कर दी कि 2024 तक या उसके बाद जो है 1 आध साल के भीतर वो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ जाएगा, तो आपको अब आसमान पर उड़ती हुई कारें, स्कूटर भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से तब जो है उसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाएगी। अभी तो जो है कल्पना ही करना था कि अभी तो इस तरह का कोई भी जो सीन है वो कॉमन नहीं है। इसलिए जो न्यू और नॉवल है, वो जो ये कैटेगरीज में जो क्राइटेरिया है, यदि इसको फुलफिल करता है तो डेफिनेटली ये जो है वो आपका वो न्यू और नॉवल की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात जो है वो पेटेंट फाइल करने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का या कॉमर्स बैकग्राउंड का या टेक्निकल बैकग्राउंड का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा बच्चा बना पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा भी पेटेंट फाइल कर सकता है। ये यूके का जो है वो एग्जांपल है कि एक बहुत छोटा बच्चा, लगभग 5 साल के आसपास का जो बच्चा था, सैम ने
जो है एक ये आप देख रहे हैं, जो ब्रूम देख रहे हैं, इम्प्रूव्ड ब्रूम, इसको उसने इन्वेंट किया था और इसका पेटेंट उसके फादर ने उसके नाम पर लिया। और ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि ये बच्चा जो है 5 साल का बच्चा, ये अपने फादर से जिद करता था कि हमको घुमाने ले चलो। उसके फादर स्वीपर थे, उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था स्वीपिंग के बाद में कि वो बच्चे को घुमाने ले जाएं। बच्चे ने तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू मूव यू, सो आई कांट डू इट। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसने क्या किया, तो ब्रूम लिया, बीच में उनको टाई किया और उसके बाद में यूज करके देखा तो उससे जो है 30% इफिशियंसी बढ़ गई। उसने फादर से कहा कि ये आप यूज करो। फादर ने यूज किया तो लगभग 30% के आसपास जो है टाइम बचा। उसने कहा कि हमको तो आप घुमाने ले चलो। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमने कोई नया इन्वेंशन कर लिया, उसका उद्देश्य ये था कि ये है मेरे फादर के पास में यदि टाइम बचेगा तो मुझे घुमाने ले जाएंगे। फादर के कोई फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा यूनिक आइटम है, एक काम करो कि इसको लायर से मिलो और जल्दी से इसका स्पेसिफिकेशन बना करके इसको फाइल कर दो, तो बच्चे के नाम पर ये रजिस्टर हो जाएगा। इससे जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी रॉयल्टी बच्चे को मिलेगी। तो उन्होंने तुरंत जो है वो लॉयर से मिल करके ये जो इम्प्रूव्ड रूम के जो स्पेसिफिकेशन है इनको इसने फाइल कर दिया और ये पेटेंट ग्रांट भी हो गया। तो 20 साल तक इसकी जो रॉयल्टी से उस बच्चे ने एंजॉय की और फादर ने भी एंजॉय की। इसी तरह से ये दूसरा जो एग्जांपल है वो आप देखते हैं कि क्रेयन होल्डर जो है, कोई भी छोटी छोटी सी पेंसिल या कोई भी क्रेयन जब बच जाती है तो या तो उठा के फेंक देते हैं, परंतु जब एक 11 साल के बच्चे ने देखा कि ये सब जो है वेस्ट होने पर किसी के काम नहीं आते हैं, तो उसने एक होल्डर बनाया और इस होल्डर में जो जो पकड़ में नहीं आने वाले इस तरह के क्रेयन्स थे उनको लेकर के उसने जो है वो उसके लास्ट स्टेप तक लिखने के लिए उसको उसके लायक बना दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है वो वॉलमार्ट को इतना पसंद आया कि वॉलमार्ट ने 500 अपने जो स्टोर्स हैं उसमें इनको रखा, इसको पेटेंट कराया और उसकी 5% की जो रॉयल्टी है वो सेल के बाद में जो ये बच्चे को पूरे पीरियड तक है ना 20 ईयर्स तक उसको मिलती रही। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम पेटेंट के लिए जा सकते हैं, परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत छोटा सी चीज है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप कर सकते हैं और सबसे पहले आप कर सकते हैं तो उसका एडवांटेज आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। दूसरा जब तक उसको सोचेगा तब तक आप जो है 4 स्टेप आगे जा चुके होंगे। इन्वेंटिव स्टेप में आप देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी सिंपल जो वर्क है वो किसी भी तरह का वर्क होता है, परंतु जो भी स्टेप है कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप हो या सिंपल स्टेप हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर जो स्टेप है वो इन्वेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल क्रांतिकारी होना चाहिए कि जिसका कुछ ना कुछ जो यूटिलाइजेशन है और यूनिक हो, दूसरे से हटके हो। तो इसमें आप खुद देखते हैं कि कोई एक लोहे का जो छोटा सा पतला सा तार है वो किसी काम का नहीं है, परंतु एक साइड आपने उसको जो है शार्प करके नुकीला बना दिया, दूसरी तरफ टिप बना दी तो ये पेपर पेन बन गई। यदि आपने एक साइड में जहां पर उसमें टिप लगनी थी वहां पर आपने छेद कर दिया, एक तरफ जो है वो शार्प थी तो नीडल बन गई। यदि जहां पर आपने उसका छेद बनाया था उसको आपने कट कर दिया, स्विंग मशीन की बन गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि पेपर पेन हो, चाहे यू पेन हो, चाहे नीडल हो, चाहे आपका स्विंग मशीन की नीडल हो, ये सब जो है 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए और चारों की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस हो गई। तो ये 4 जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो पेटेंट उनका फाइल हो गया, है ना। और उनका पेटेंट फाइल होने के बाद में ग्रांट भी हुआ और उसको उनके इन्वेंटर्स ने एंजॉय भी किया। तो ये भी आप देखें कि चाहे सिंगल फोल्डेड यू पिन हो, चाहे डबल फोल्डेड यू पिन हो, चाहे ट्रिपल फोल्डेड यू पिन हो, इन सब के स्पेसिफिकेशंस को दिखाते हुए ये सब जो आइटम्स हैं ये सब के सब पेटेंटेड आइटम थे जो आज के समय में इन सब का जो यूज है वो क्या हो रहा है, वो उनका जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाने के बाद में जो कॉमन पब्लिक उनको फ्रीली यूज कर पा रही है। इसी के कनेक्शन में एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि पहले जो पिन थी वो उसका जो टिप है वो राउंडेड आता था, परंतु अब जो सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके कि जो वायर का टुकड़ा था उसको थोड़ा सा बड़ा ले लिया और एक साइड उसको जेड शेप में प्रेस कर दिया और तो उससे क्या हुआ कि ये क्लेम किया गया कि देखिए हमने डिजाइन बदल दी, नई डिजाइन लेके आ गए। इसमें आप यदि जो भी पेपर को आप पिन अप करते हैं तो आपके हाथ में चोट लगने की संभावना खत्म हो गई और ज्यादा जो मोर नंबर ऑफ पेजेस कैन बी
पिंडा। तो इसके बेसिस पे उसने जो है वो उस पर डिजाइन रजिस्ट्रेशन ले लिया और वो डिजाइन जो है वो 15 ईयर्स तक उसने एंजॉय किया। इसी तरह से आप यू पिन देखते हैं कि यू पिन के ऊपर जो है वो इंसुलेशन चढ़ाने से उसकी जो है ब्यूटी बढ़ गई, और इसमें क्या क्लेम किया गया कि पुराने जो पिन थे वो सब के सब जो है उनमें रस्टिंग हो जाने से पेपर खराब हो जाता था, परंतु अब आपका जो पेपर है वो खराब नहीं होता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है, इसलिए वो न्यू डिजाइन एक्ट में उनको भी 15 साल के लिए फायदा हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी यदि ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज का या कोई भी पेटेंट आपका एक्सपायर हो गया है तो भी आप किस ब्यूटीफुली तरीके से इन्वेंटिव स्टेप्स के थ्रू आप उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं, या आप जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज को किस तरह से किसी कमर्शियल वैल्यू में बदल सकते हैं, ये सब जो है आपके इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि ट्रेडिशनल नॉलेज का एक जो एग्जांपल है हम आपको बताएं कि आजकल जो है कुछ समय से कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस है। मिट्टी के बर्तन में पकाई हुई चाय को यदि आप जो है कुल्हड़ में परोसते हैं तो उसका जो सौंधापन है वो काफी बढ़ा देता है। पर कुल्हड़ वाली चाय के नाम से आप जो है ट्रेडमार्क नहीं ले सकते या राइट अपना उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि अपनी शॉप खोल के उसको बेचता है और उससे अर्न करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। भले वो ट्रेडिशनल नॉलेज है परंतु उसकी यूनिकनेस है, वो मेहनत है, वो जो बेच रहा है वो कुल्हड़ वाली चाय का ब्रांड नेम नहीं दे सकता, परंतु कुल्हड़ चाय के नाम से उसको बेचता है। तो आप देखते हैं कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के किसी एक शहर में नहीं बल्कि बहुत सारे शहरों में आपको कुल्हड़ वाली चाय आजकल आसानी से अवेलेबल है और काफी पॉपुलर भी है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को आप इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में यदि बना सकते हैं तो उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी कहलाती है। तो इस तरह से न्यू, नॉवल, नॉन ऑब्वियस, यूजफुल और कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी, ये सारे जो क्राइटेरिया हैं ये फुलफिल करने के बाद ही जो आपकी एप्लीकेशन है वो पेटेंट के लिए जो सुटेबल होती है, फुलफिल करती है, और तब आप पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्राइटेरिया का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी जो एप्लीकेंट है जो अपनी एप्लीकेशन पेटेंट के लिए फाइल करना चाहता है तो पहली बात तो यह है कि कोई भी इन्वेंटर खुद चाहे तो वो पेटेंट एप्लीकेंट हो सकता है, या वो अपने किसी दोस्त को या किसी एडवोकेट को जो है वो पावर ऑफ अटर्नी दे करके उसको असाइनी बना सकता है। जैसे कि नॉर्मली जब हम लोग किसी की पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कराते हैं और यहीं बैठे बैठे सब कुछ होना होती है या ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, तो हम उस पर्सन को जो रजिस्टर्ड पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं उनको जो पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं ताकि उसके बिहाफ में वो एप्लीकेशन बना के सिग्नेचर करके और वहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सके। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक वो आपका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में जो सर्टिफिकेट है वो इन्वेंटर या पेटेंटी को मिल जाता है। उसके बदले जो अटॉर्नी है वो आपसे गवर्नमेंट फी पे करने के अलावा जो अपनी खुद की फी है इतने समय तक जो सर्विस दी है वो देता है, वो आपके साथ में चीट नहीं कर सकता है। तीसरे तरह का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन सा होता है? डिजीज्ड एप्लीकेंट, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, इस तरह के कोई भी जो इंस्टीट्यूट हैं वो इंस्टीट्यूट एप्लीकेंट हो सकता है। बस फर्क यही पड़ता है कि इंडिविजुअल के लिए और एमएसएमई के लिए जो फी है वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि किसी इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से आप फाइल करते हैं तो आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ती है, जो उसका चार्ट हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पेटेंट का जो टर्म है वो 20 ईयर्स है, उसके बाद 1 सेकंड भी आप जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से जो एप्लीकेशन है वो काउंट की जाती है। पहले तो जो पेटेंट है वो 8-8, 10-10 साल में मिलते थे, परंतु अब जो है प्रोसेस काफी फास्ट हो गई है। वो 8 महीने से लेकर के 2 या 2.5 साल के भीतर आपको जो पेटेंट है वो ग्रांट हो जाता है, बशर्ते कि आपका जो अटर्नी है वो अच्छा हो या आप में इतनी स्किल हो कि आप अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसको आप ड्राफ्ट कर सकें तभी आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू होगी और उसमें कम से कम ऑब्जेक्शंस आएंगे।
यदि पेटेंट मिल जाता है तो पेटेंट का सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो किसको है? पेटेंट का सबसे ज़्यादा फायदा जो है इन्वेंटर को है, क्योंकि वो कंपटीशन से सिक्योर हो जाता है, उसके इन्वेंशन को कोई चुरा नहीं सकता है, कोई उसकी परमिशन के बगैर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, बस एकेडमिक पर्पस के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। पब्लिक के नॉलेज में नई इन्वेंशंस आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, और वो टेक्नोलॉजी 20 इयर्स के बाद में फ्रीली अवेलेबल होती हैं यूज करने के लिए। चीपर और बेटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम स्मार्टफोन के केसेस में ही देखें कि पिछले 5 साल पहले जो सैमसंग के या जो आईफोन है उनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए से ऊपर ही होती थी, और बाकी जो प्रोडक्ट हैं जो दूसरे पुअर टेक्नोलॉजी के फोन हैं वो आपके भी कम से कम 15,000 20,000 रुपए से कम में नहीं आते थे। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का अपग्रेडेशन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, कंपटीशन बढ़ा, इससे क्या फायदा हुआ कि आज 25 से 30,000 रुपए में आपको 1.5 लाख रुपए के स्पेसिफिकेशन वाले जो फोन हैं वो स्मार्ट गैजेट्स मिल रहे हैं, और 10,000 रुपए में भी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स या गैजेट्स मिल रहे हैं जिनकी इफिशियंसी 25,000 रुपए के फोन से कम नहीं है, किसी भी कीमत में कम नहीं है। लगभग सारे फीचर्स आपको उसी तरह के मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी मार्केट में आ गए हैं जो इन प्रोडक्ट्स को पब्लिक के लिए अवेल कराते हैं। तो चूंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ये प्रोडक्ट्स आएंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो सेल होगी तो जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, और जो टैक्स है वो भी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जिससे जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बढ़ेगा। इन्वेंटर्स जो है वो प्रमोट होंगे, उनका अपना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, और पब्लिक को बेटर और चीपर टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल होंगी। ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो सारे प्रोडक्ट्स भी उनको मिलेंगे। ये हम अब यदि देखें कि हम अपनी एप्लीकेशन जो है कहीं फाइल करना चाहें तो कहाँ करना चाहिए। बेसिकली जो है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ऑफ इंडिया और फॉरेन के लिए जो है 4 जो है वो जोन बनाए गए हैं। तो नॉर्थ जोन के लिए नई दिल्ली, साउथ जोन के लिए चेन्नई, हमारे वेस्ट जोन के लिए जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा जो राज्य आते हैं इनके लिए, और दमन दीव, ये सब जो है इनका जुरिडिक्शन मुंबई है। और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए और फॉरेन एप्लीकेशंस के लिए जो जुरिडिक्शन है वो कोलकाता है। परंतु जब से ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है या आप अटॉर्नी के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर बैठे भी यहाँ से फी पे आप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पूरी तैयार हो जाएगी, हम लोग उसमें आपकी मदद करते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्रायर सर्च भी हो जाएगी, एप्लीकेशन तैयार होकर आपकी एप्लीकेशन फाइल भी हो जाएगी, और जो फर्दर प्रोसेस है वो भी हो जाएगी। तो इस तरह से अब हमें कहीं भी किसी भी जगह पे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने प्लेस में ही बैठे हुए टेक्नोलॉजी की मदद से जहां भी हम जो अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करते हैं वो दिल्ली के सर्वर में जाकर के स्टोर होती है, और उसके बाद में फिर वो उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी ऑफिस के थ्रू होती है, तो वो जो कंसर्न ऑफिस है वो उसको डील करता है। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस यदि आप पूरा नोट ना कर पाए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा 1 नियर एंटॉप हिल, हेड पोस्ट ऑफिस, SM रोड, एंटॉप हिल, मुंबई 37, और फोन नंबर, फैक्स नंबर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ जो है इसकी वेबसाइट याद रखिए www.ipindia.nic.in। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इसमें आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस और जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको लगातार मिलती चली जाती हैं। सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, कैसे फाइल करना चाहिए, कहाँ फाइल करना चाहिए, एड्रेसेस क्या हैं, लेटेस्ट जर्नल्स कौन से हैं, कौन कौन सी अभी नई न्यूज़ हैं, कौन से अभी नए प्रोडक्ट्स आए हैं या नए एप्लीकेशन जो हैं वो ग्रांट हुई हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस साइट पर अवेलेबल है। और इसकी लिंक भी जो है बहुत आसान है कि इसके थ्रू आप दूसरी लिंक पर भी जा करके ढेर सारी एप्लीकेशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी जो हमने आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी के बेसिस पर आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको जो आईपीआर की क्वेरीज में और आईपीआर की एप्लीकेशन यदि आप फाइल करना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी मदद कर सकें।
जैसा हम लोग फीस के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जब ऑनलाइन फी का ये स्ट्रक्चर है, ऑफलाइन में हमको 10% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो कोई भी यदि एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन को 1600 रुपये, MSME को 4000 रुपये, और कोई इंस्टीट्यूट है तो उसको 8000 रुपये। ये मैंडेटरी है, ये फी पे करना ही होती है। यदि हम अपनी एप्लीकेशन को जल्दी पब्लिश कराना चाहते हैं, क्योंकि मिनिमम पीरियड 18 मंथ्स है, तो आपको 2500 रुपये इंडिविजुअल के लिए, MSME के लिए 6250 रुपीज और 12,500 रुपीज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के लिए देना होंगे, जो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको वो देना ही हो। पर जो एग्जामिनेशन की फी है वो मैंडेटरी है। इंडिविजुअल के लिए 4000 है, स्मॉल एंटिटी मतलब MSME के लिए 10,000 है, और अदर यानी यूनिवर्सिटीज के लिए 20,000 है। तो आपको जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं और जो एग्जामिनेशन है, ये दो फी तो मैंडेटरी है, ये आपको देनी होगी। इसी तरह से आपकी यदि एप्लीकेशन 30 सीट्स में है, यानी 30 पन्नों में यदि आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यदि एक भी सीट बढ़ती है तो 160 रुपीज पर सीट इंडिविजुअल को, 400 रुपीज पर सीट MSME को, और 800 रुपीज पर सीट जो यूनिवर्सिटी है उसको पे करना होती है। इसी तरह से आप मैक्सिमम जो है 10 क्लेम फाइल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में, परंतु यदि आपका एप्लीकेशन में 10 क्लेम से ज्यादा है तो पर क्लेम आपको 320 रुपीज पर क्लेम, इंडिविजुअल को 800 रुपीज पर क्लेम MSME को, और 1600 रुपीज पर क्लेम आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 30 शीट्स के अंदर और 10 क्लेम्स के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन को तैयार कर लें, ताकि एक्स्ट्रा फी हमें पे ना करने पड़े। यहाँ पर कुछ जो है ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, जिनमें से BK तिवारी हैं, उन्होंने एक अपैरल बनाया था, इल्यूसिव बेल्ट अलाइंड विद एक्सटेंडेड जिप, ये 2004 में। इनको ये जो एप्लीकेशन है, ये इनका बहुत अच्छा ये गारमेंट था, परंतु ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। ओल्ड एज पर्सन्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। शैलेंद्र वीरानी ने एक ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज बनाई थी, ये भी 2004 में ये ग्रांट हुआ था। इसमें यह था कि सिरिंज का जो लिक्विड है, जैसे ही आपके बॉडी में जैसे ही आपका जाता है, लास्ट ड्रॉप जाने के बाद में जो उसका स्प्रिंग है वो टूट जाता था, ताकि दोबारा उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। परंतु ये स्प्रिंग जो है, ये जो सिरिंज है, वो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ, जबकि वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड थी। वो पर्सन जो है इसको अवेल नहीं कर पाया, या वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाया। संदीप, एक मिनट देखना बेटा। तीसरे जो है मिस्टर भरत गुप्ता ने जो है ऑटोमेटेड एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था, जो आज आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, मिस्टर भरत गुप्ता ने जो है वो ये ऑटोमेटेड एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था 2007 में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे प्रीपेड एनर्जी मीटर आ रहे हैं आजकल, जो है वो बहुत कॉमन हो रहे हैं, ऐसे एनर्जी मीटर का सबसे पहला जो मॉडल है उन्होंने तैयार किया था, जिसके लिए उनको कमर्शियलाइजेशन ऑफ पेटेंट के लिए 5 लाख का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब्दुल कलाम से अवार्ड भी मिला था। तो इसी के बाद फिर जो है इसके जो अपडेटेड वर्जन है प्रीपेड एनर्जी मीटर के इलेक्ट्रिसिटी के, वो मार्केट में आए। और अब कुछ सालों में तो भोपाल में भी लगभग सारे जो मीटर्स हैं वो प्रीपेड आपके जो मीटर हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हैं, उसमें ही कन्वर्ट हो रहे हैं। एक मिस्टर अंशुल अग्रवाल हैं, उन्होंने भी 2012 में एक इम्प्रूव्ड कंक्रीट कंपोजिशन बनाया था। ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो इसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा थी, और ये काफी मजबूत, ये मटेरियल यूज करने पे उसका जो स्ट्रेंथ है काफी मजबूत हो जाती थी। तो इसका जो यूज है वो उन्होंने L&T में जहां ये काम कर रहे थे वहां पर उसको किया है। राजकुमार शर्मा ने इस तरह से जो एक बिल्डिंग कूलिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें नेचुरल कंडीशन में जो है उसको रख करके उसका जो टेम्परेचर है, इसके लिए AC या दूसरे जो कूलिंग इंस्ट्रूमेंट है इनकी आवश्यकता ना पड़े, और वो फिर भी जो नॉर्मल कूलिंग पर बना रहे, तो उससे एनर्जी सेविंग होती है। ये भी अभी 2017-18 में ही उसको
ग्रांट हुआ था। जैसे बेसिकली डॉक्टर उषा द्विवेदी और मनीष अग्निहोत्री ने, इन्होंने जो है एन एपरेटस ऑफ कूलिंग डाउन अ बेवरेज कंटेनर स्टोरिंग अ बेवरेज, जो है अभी 2020 में ही इनको ग्रांट हुआ था, ये इन्होंने बनाया। इसमें ये होता है कि कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल है, उस बोतल को जब आप कूल करते हैं डीप फ्रिज में, तो उसका टेम्परेचर को 10 to 15 डिग्री को डाउन होने में हाफ एन आवर लगता है, परंतु यहाँ 10 मिनट्स में ही वो 20 डिग्री पर आ जाता है और उसके बाद में फर्दर उसकी कूलिंग पॉसिबल है। तो ये जो है, ये इससे भी एनर्जी सेविंग काफी होती है। प्रशांत साहू और सुशील कासेव जो हैं, इन्होंने ये जो है सागर यूनिवर्सिटी के फार्मा डिपार्टमेंट से हैं, इनको भी 2020 में ये जो है पेटेंट ग्रांट हुआ। इसमें टॉपिकल बायोडिग्रेडेबल चैटसन नैनोजेल ऑफ टेमोजोलोमाइड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा, इसके लिए इन्होंने जो है वो जो जेल है वो तैयार किया है, और वो जेल जो है वो मेडिसिन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नेचुरली इसमें जो है कोई भी फार्मा कंपनी काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के जब काम करेगी, तो इसका जो काफ़ी सारी रॉयल्टी जो है इन लोगों को मिलेगी। मुरलीधर महाजन ने न्यू टेक्निक टू मेंटेन लॉन्ग लाइफ लस्टर इन कॉपर, ये भी इनको 2020 में ग्रांट हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि हम कॉपर के किसी भी पॉट को या वायर को जब हम देखते हैं कि हाँ बस इसको एंड करते हैं। तो ये जो लॉन्ग लस्टर कॉपर में मेंटेन करने की बात थी, वो ये था कि कोई भी यदि आर्टिकल को या किसी भी वायर को आप ओपन एयर में छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है वो उसकी लस्टर डिम हो जाती है और उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। इससे पूरा बचाने के लिए एक जो नया ट्रीटमेंट है वो इन्होंने किया, जिसपे इनको पेटेंट ग्रांट हुआ। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफी रिवोल्यूशनरी होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि आप जो पेटेंट फाइल करते हैं, तो यदि आपने बिना कम स्पेसिफिकेशन के साथ में किया है, क्लेम्स के साथ नहीं किया है, तो प्रोविजनल पेटेंट होगा। और यदि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं और एग्जामिनेशन के बाद में सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव हो जाते हैं, तो आपको ग्रांटेड सर्टिफिकेट ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है आज के समय के लिए जो देखते हुए हमने आपको पेटेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं और जो नटशेल में बाकी दूसरे टाइप के जो आईपीआर्स हैं उनको हमने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को उसका जो है समझ में भी आया होगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। और जल्दी ही मुझे लगता है कि आपके यहाँ से कोई ना कोई जो आईपी क्वेरीज हैं या आईपी की जो एप्लीकेशंस हैं वो फाइल करने के लिए जरूर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम। Hello, thank you so much, sir. Sir, one question is there from the behalf of participant. I'm asking, paper general and any subject bulletin also comes under IPR Act or not? Hello, sir. Hello. Yes, sir. One of the participant has asked that paper general and others and any subject bulletin also comes under IPR Act or not? Pardon me once again, ma'am. Sir, paper general and any subject bulletin also comes under IPR Act or not? Yes, it comes under IPR, but it comes under the copyright. Oh, it comes under copyright. Okay, sir. Thank you so much. The way you have explained the patent by comparing with the real life product, like mobile and all, was really easily for us to understand. It was a very good and informative session. Hope to attend more sessions by you. Now I would like to request convener Dr. Chitra ma'am for questioning and vote of thanks. Okay. Over to you, ma'am. Okay. Sir, one question from my side. Okay. How to involve a student to create patent? क्योंकि लॉट ऑफ आइडियाज इन स्टूडेंट्स के पास आइडिया तो रहते हैं, बट वो कैसे पेटेंट को फाइल करेंगे ये उनके पास नहीं रहता। तो हम उनको क्या इजी से इजी अपन बता सकें कि वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए।
हाँ, आप उनको बता सकते हैं या उनकी जो क्वेरीज हैं हमारे पास आप जो है मेल पर ईमेल पर भेज सकते हैं, तो हम उसमें क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है या कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है वो हम आपको गाइड कर देंगे। ओके ओके, ठीक है सर। और सर जो आपने प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन की बात की है, तो उसमें सिर्फ अपन प्लांट की डिजीज बोलेंगे या जो बहुत सारी वैरायटीज के प्लांट्स आ रहे हैं उनकी भी बात करते हैं? नहीं, वैरायटी आप प्लांट्स की ही बात करते हैं। चूंकि जो नई ऑलरेडी एग्जिस्टेड वैरायटीज हैं उनके अलावा कोई भी नई वैरायटी यदि मार्केट में आई है तो वो वैरायटी जो है वो प्लांट वैरायटी में काउंट होगी। जैसा कि हमने एग्जांपल आपको दिया था कि यदि आपका पिंक या रेड या व्हाइट कलर का जो रोज है जो नेचुरली पाया जाता है वो प्लांट वैरायटी में नहीं होगा, परंतु ब्लैक और ब्लू कलर के जो रोजेस हैं वो प्लांट वैरायटी में काउंट होंगे। इसी तरह से आजकल ऐसे जो है एप्पल के प्लांट आने लगे हैं जो थ्रू आउट द ईयर जो है फ्रूटनिंग करते हैं, वो प्लांट वैरायटी में आएंगे, जबकि जो है जो एप्पल है वो सीजनल होता है। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर, एंड today's we goes to wind up session. Then we start vote of thanks sir. Firstly, lot of thanks to all for provide a very lot of knowledge regarding IPR. Then we express myself. Honorable Chancellor sir, Registrar sir, IQAC head Dr. Sangeeta Johri ma'am, Dean, HOD, faculty members, and all participants. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Dr. Chitra Singh, on behalf of the Science Department, extend a very hearty vote of thanks to the honorable delegates who blessed us with their presence and took out valuable time of your busy schedule. Also, I would like to extend a special thanks to Dr. N.K. Chaube sir for inspiring us him valuable talk in patent validity, time period, public domain protection of undisclosed information, Farmer Right Act, patent database to aware. Okay, design, copyright, trademark, etc. Sir, thank you very much, sir. I also wish to express my gratitude to our Dean, Dr. Neetu Paliwal, for providing encouragement and support. Thanks to all faculty members, participants for making this event successfully with your contribution. Thank you so much, sir. Thank you very much to all of you. Thank you very much. Next सर time. थैंक्स टू यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे भी आपका गाइडेंस मिलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट और सभी की तरफ से करूंगी सर, अगर आप अपना पीपीटी अगर हम लोगों से शेयर कर सकें तो रिक्वेस्ट थी तो जी। ठीक है मैम, मैं कर दूंगा। अब मैम ठीक है, एक ग्रुप फोटो के लिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेते तो अपन जूम पे ही ग्रुप फोटो कर लेते। जी जी ऑन क्यों हो रहा है? ये राजू थैंक यू सो मच सर, आगे भी आपका गाइडेंस मिलता रहेगा सर। थैंक यू सो मच। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। ठीक है मैम, प्लीज और थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट। आप लोग का ई सर्टिफिकेट आप लोग को जल्दी ही अवेलेबल होगा ऑन ईमेल। ओके, थैंक यू।